So our next topic is file allocation methods. In the last video, we have discussed file access methods. That was the topic where we were discussing about how the information stored inside the file can be accessed efficiently. But before going into the file, how do we allocate space to that file in the disk? That is the main problem. So file allocation methods are the different methods that are available to allocate space to the file in the disk. ठीक है? So the direct access nature of disk allows us flexibility in the implementation of file. In almost every case, many files will be stored on the same disk. The main problem is how to allocate space to these files so that disk space is utilized effectively and files can be accessed quickly. So three major methods of allocating disk space are contiguous allocation, linked allocation and indexed allocation. First, let's discuss it one by one. The first allocation method is contiguous allocation method. So in contiguous allocation method, each file occupy a set of contiguous addresses on disk. Our disk is divided into blocks. ठीक है, जैसा कि मेन मेमोरी को हमने पेजेस में डिवाइड किया था, फ्रेम में डिवाइड किया था, ठीक है, वैसे ही डिस्क में जब हम डेटा या फिर स्पेस एलोकेट करते हैं फाइल्स को, तो हम ब्लॉक्स के फॉर्म में करते हैं कि हाउ मेनी ब्लॉक्स टू बी एलोकेटेड टू अ सिंगल फाइल, right? So here in contiguous allocation, what we are talking about, we have set of blocks, set of free blocks, and we have to allocate those blocks to the files. How do we allocate those blocks? So each file occupy a set of contiguous addresses on disk. That means a set of contiguous blocks will be given to a single file. ठीक है, defined by disk addresses and length in block units of the first block. The disk addresses define a linear ordering on the disk. जैसे कि अगर आप contiguous blocks प्रोवाइड कर रहे हैं फाइल किसी एक फाइल को, और एक फाइल के पास n ब्लॉक्स है, ठीक है, ज़रूरी नहीं उसको 0th ब्लॉक ही मिले स्टार्टिंग, ठीक है, उसके पहले हो सकता है और भी बहुत सारी फाइल्स आई हो. सो द फाइल like a file 2 has come and it gets n blocks and it is the first block starts at location B. तो और उसको n ब्लॉक आपने दिया है और B से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, कितने सेट ऑफ कंटिग्यूअस ब्लॉक्स कौन कौन से होंगे, B द फर्स्ट वन, B+1, B+2, so on, B+n-1. So these are the different addresses, disk addresses or for a block will be given to the file number 2. So when आप इस फाइल के बारे में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रखेंगे, तो डायरेक्टरी कंटेन्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड द लेंथ ऑफ द फाइल. ठीक है, तो फाइल को आप, ये तो हमने पहले पढ़ा, फाइल सिस्टम में हम हर एक फाइल का एक एंट्री मेंटेन करते हैं, डायरेक्टरी एंट्री रखते हैं दैट मेंटेन्स द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. सो व्हेन यू आर मेकिंग the directory entry for this file, it will contains the starting address of the first block, that is B, and the length of the block, that is N. So B, N directory entry ऐसा होगा, B block से start हुआ है और length N है, ठीक है. So in this way contiguous allocation में हम blocks को, files को assign करते हैं like this. You can see, just assume this is a disk. It has several blocks और इसमें से कुछ blocks free आपको दिख रहे हैं, कुछ allocated दिख रहे हैं. The shaded one are allocated. So the one, like there is a function, add function, we have to store this function or this file, add file, where the function सोर्स फाइल हो सकता है, ठीक है. जिस फंक्शन को स्टोर करना है, तो ये फाइल जो है हमने उसको 4 ब्लॉक्स दिए हैं
और बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस एलोकेशन यू हैव गिवन 6, 7, 8, 9 डायरेक्ट ब्लॉक्स, ठीक है, सेट ऑफ कंटिन्यूअस एलोकेशन। तो देखो ऐड के लिए हमने स्टार्टिंग एड्रेस क्या रखी है 6 बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 6th ब्लॉक एंड कितने ब्लॉक दिए हैं उनको 7, 8, 9 टोटल 4 ब्लॉक्स, सो लेंथ इज 4 ब्लॉक्स। सो लाइकवाइज जितने भी फाइल्स होंगे उन सभी का डायरेक्टरी एंट्री कैसे मेंटेन होगा, द स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस एंड द लेंथ ऑफ द फाइल, ठीक है। सो इन दिस वे कंटिन्यूअस एलोकेशन इज मेंटेन्ड इन अवर फाइल एलोकेशन मेथड। तो हाँ एक बात बताओ, अगर हमने फाइल को कंटिन्यूअस एलोकेशन से स्टोर किया है डिस्क में, अब अगर फाइल एक्सेस करना है तो हमने 3 एक्सेस मेथड पढ़े हैं। तो पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस, इज इट पॉसिबल सिक्वेंशियली एक्सेस दिस फाइल विच इज स्टोरिंग कंटिन्यूअसली, डेफिनेटली। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस पता होना चाहिए और लेंथ पता होना चाहिए सो दैट प्रोटेक्शन भी हो जाए, तो आप इजिली सिक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल सिस्टम रिमेंबर्स द डिस्क एड्रेस ऑफ द लास्ट ब्लॉक, जब उसको जहाँ तक उसने रीड किया है और जैसे ही उसको नेक्स्ट रीड करना है बस उसको सिक्वेंशियली करना है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड रीड्स द नेक्स्ट ब्लॉक। और अगर डायरेक्ट एक्सेस करना हो तो भी हमको ये काम आ जाएगा, हमको स्टार्ट ब्लॉक पता है और हमको 3rd ब्लॉक में जाना है, यूजर ने बोला हमको 6 स्टार्टिंग पता है, हमको 3rd ब्लॉक चाहिए, 3rd ब्लॉक चाहिए, दैट मीन्स आपके कौन से ब्लॉक में चले जाओगे, तो आप एब्सोल्यूट एड्रेसेस से डिस्क के उस ब्लॉक में चले जाओगे जहां पर वो एक्चुअल डेटा आपका प्रेजेंट है। सो इन कंटिन्यूअस एलोकेशन बोथ द सिक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड इज पॉसिबल, ठीक है। सो बोथ सिक्वेंशियल एंड direct access methods are allowed by contiguous allocation. So what can be the disadvantages of it? I wrote some of them. पहला ये, अब अगर आप कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, दैट इज द सेम थिंग। तो फाइंडिंग स्पेस फॉर द न्यू फाइल, यू कैन यूज डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन, एनी ऑफ दीज कैन बी यूज्ड, ठीक है। लेकिन इन सभी में क्या हो रहा था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, ठीक है, और किसी में इंटरनल भी होता है, ठीक। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे, कंटिन्यूअस आपने एलोकेशन किया है, बीच से कोई फाइल डिलीट होती है, उसका स्पेस खाली रह गया, वो फाइल ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फ्री स्पेस के चंक बन गए। व्हेन यू कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्शन अगर हुआ तो वो सेट ऑफ ब्लॉक्स अगर फ्री स्पेस ब्लॉक्स में डाल दिए तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो छोटे छोटे जो हमारे चंक्स, मेमोरी चंक्स, फ्री मेमोरी चंक्स बन गए हैं, दैट कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ न्यू फाइल विच इज लार्जर इन साइज देन द स्मॉलर चंक्स, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस एलोकेशन। तो कॉम्पैक्शन इज अ सॉल्यूशन दैट आई रोट हियर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, अगर हम यहाँ पर वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, ठीक है, चलो बेस्ट फिट हम चूज कर लेते हैं। तो बेस्ट फिट में क्या होता है, इट एलोकेट स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि फाइल का साइज हमको इनिशियली पता होगा। इफ इनिशियली फाइल साइज इज नॉट नोन, देन आपको पता ही नहीं हाउ मच अमाउंट टू एलोकेट और हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स और हाउ मच अमाउंट ऑफ मेमोरी टू बी एलोकेटेड टू दैट फाइल, ये नहीं पता है, तो यू कैन नॉट एलोकेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू दैट फाइल। और इन फ्यूचर अगर वो बढ़ती है उसकी साइज तो आप उसको दे नहीं सकते बिकॉज आपने सेट ऑफ कंटिन्यूअस एलोकेटेड ब्लॉक्स दिए हैं, इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल नाउ, ठीक। और वर्स्ट फिट में क्या होगा, वर्स्ट फिट में आपने चलो बेस्ट फिट में ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वर्स्ट फिट दे दिया तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा दे दिया, फाइल का साइज कभी बढ़ा ही नहीं, किसी फाइल का साइज बढ़ेगा किसी का नहीं बढ़ेगा, तो आप सभी को तो वर्स्ट फिट में नहीं डाल सकते, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के साथ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो जाएगा, राइट। तो फाइल साइज हमको शुरू से तो जरूरी नहीं पता हो, और अगर पता भी होगा और बाद में अगर वो मॉडिफाई भी होता है कि दिस इज द फाइल साइज, इट विल नॉट बी मॉडिफाइड, बट अगर वो मॉडिफाई होता है आफ्टर एन ईयर और अ मंथ, यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन।
बहुत सारे आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिस्क में ये एक्सटेंट प्रोवाइड, द सॉल्यूशन इज द एक्सटेंट, ये एक्सटेंट, ठीक है। एक्सटेंट क्या है? जब फाइल को न्यू डिमांड आती है कि उसको और स्पेस चाहिए, कुछ और डेटा स्टोर करना है, तो वी अगेन गिव अ न्यू सेट ऑफ कंटिगियस ब्लॉक्स टू दैट फाइल, ठीक है। मे बी इट इज समवेयर एल्स इन द डिस्क, और वो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंट, न्यू सेट ऑफ कंटिगियस ब्लॉक्स, न्यू सेट ऑफ कंटिगियस ब्लॉक्स, ठीक है। तो उसको हम एक्सटेंट कह रहे हैं। तो लास्ट जो ब्लॉक होगा उस पर्टिकुलर फाइल का कंटिगियस एलोकेशन में, दैट विल पॉइंट टू द एक्सटेंट, ठीक है। और वी कैन हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑल्सो. So this is the contiguous allocation.